Hello everyone, welcome back to your physics concept class with the objective question session 9 including the topic uniform circular motion and non-uniform circular motion. So let's start our session. You know it's Saturday today and this is the time of objective question session. This is the session 9th. Okay, let me start. तो सबसे पहले तो हमने इस सेशन के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और आज के सेशन में टॉपिक है सर्कुलर मोशन और उसमें दो सब टॉपिक इन्वॉल्व हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन वी हैव टू नो सम फॉर्मूला रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ द डे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सर्कुलर मोशन में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है वो पहले देख लेते हैं. लाइक सर्कुलर मोशन आपको पता है ये सर्किल है. सर्किल पे कोई भी पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा लाइक P टू Q तो ये एंगल भी कवर करेगा, डिस्टेंस भी कवर करेगा. तो सबसे पहले फॉर्मूला, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस इज F, सो द फर्स्ट फॉर्मूला this is called angular displacement given by F upon R, angle equals to R upon theta. Simply it can be written as d theta equals to dF upon R. The second formula is related to the angular velocity. So angular velocity of particle on the circular 2 pi upon the time of revolution, 2 pi by t. And the third one is relation between the linear and angular velocity is B equals to R omega, and there is an acceleration in the circular motion no matter it is uniform or non-uniform. So the acceleration is centripetal acceleration which is V square upon R or R omega square. These are the formula of acceleration. And other one, the relation between linear and angular acceleration is A equals to R alpha. And again the next formula, alpha is given by d omega by dt. ठीक है, same as the linear acceleration is the rate of change of the linear velocity, the angular acceleration is the rate of change of the angular velocity. Okay, now one more formula, the seventh, the linear momentum P equals to mb and the angular momentum L equals to mbr और r into p और क्रॉस p. इस तरह फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं और भी हो सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन वाइज. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर सेशन एंड फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन सी ऑन द स्क्रीन. So you can see on your screen the question number 1, and in this question if the length of the second hand in a stop clock is 3 centimeter, then the angular velocity and the linear velocity of the tip is given by 4 options are there in the questions, A, B, C and D. So let me solve the question. To solve the question, returns back to the board. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन 1. क्या गिवन है आपको? द सेकेंड हैंड की लेंथ गिवन है जो रेडियस का वर्क करेगी 3 सेंटीमीटर. कैलकुलेट क्या करना है हमें? इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. अभी अभी मैंने लिखा द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई अपॉन टी और क्लॉक की एक सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड वाली सुई अपना रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 60 सेकेंड में. दैट इज 2 पाई अपॉन टी, दैट इज पाई बाई 30. द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाई 30 एंड 3.14 इट कैन बी रिटर्न एज 314 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. ये डेसिमल के 2 पावर और ये 0 की 2 पावर. इसको डिवाइड करते हैं 1 time, then 0 14 4 times and now
after 0.66 into 10 to the power minus 3, that is 104 point, इसको 7 यूज कर सकते हैं, into 10 to the power minus 3. So we can write here 0.123 1047 unit of angular velocity is radian per second. Now we can calculate the linear velocity. The linear velocity is given by v equals to r omega. R is given 3 centimeter, so 3 into 10 to the power minus 2 in meter, and omega is this 0.1047. We can multiply this. One, two, three, 4 into 10 to the power minus 2, that is 0.00314 and unit of linear velocity is meter per second. So our options are, देखिए जो once again you can see on the screen for your options. So your options are, देखिए इनमें से कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आई थिंक सिर्फ आपका लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, डी 0.1047 radian per second is the angular speed, 0.00314 meter per second is the linear speed. So your correct option is option D. So now returns back to the board. The right answer is D. Okay, this is your first answer. Now our second question of the day. For the second question, once again see on the screen. So your second question, two particles of equal masses are revolving in the circular path of radii r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal forces is, once again there are 4 options in the questions, A, B, C and D, you can see. So let's we calculate which option is correct here. Okay, which option is correct here. So returns back to the board for solving the questions. Okay, तो क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास है, 2 पार्टिकल हैं, और जो r1 r2 रेडियाई में क्या चाहिए आपको, रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस चाहिए. तो फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस mb स्क्वायर अपॉन r, वहाँ देखिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा है b स्क्वायर अपॉन r और फोर्स होता है F इक्वल्स टू ma, तो मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, सिर्फ रेडियाई अलग अलग है, r1 r2. रेशियो चाहिए आपको सेंट्रीपिटल का. सो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1. सो one of them option is correct. Once again see on the screen for the options. The option A is r2 upon r1, the option B is under root r2 upon r1, option C is r1 r2 whole half square, and option D is r2 upon r1 whole half square. So which option is correct? So only option A is correct. So this answer is answer A. Okay, now we can move towards our next question. So see your screen for the next question. Question number 3. In 1.0 second, a particle goes from point A to V, moving in a semicircle of radius 1.0 meter. See in the figure. The magnitude of the average velocity is, there are 4 options in the question, 3.14 meter per second, 2 meter per second, 1.0 meter per second and 0. 4 options in the question third. और इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपको कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा. तो ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज AB as the displacement, the shortest distance between initial and final position. This is the diameter, so it is double of the radius, and that is 2 into 1, that is 2 meter, and the formula of average velocity is total displacement, that is AB divided by total time. So
total displacement is 2, total time is 1 second, that is 2 meter per second. So you can see on your board screen the option B is correct now. Okay, now it's fourth question, and fourth question, for the four questions see on your screen. An object is tied to a string of length L and it revolves in a vertical circle at the minimum velocity. When the object reaches the uppermost point, the string breaks and it describes a parabolic path as shown in figure. Under the gravitational force, the gravitational range AZ is the plane of would be. There are four options in the question: A, B, C and D. L, 2L, under root 2L and 2 root 2L. So for solving the question, now returns back to the board. Okay, so this is question fourth. एंड अभी आपने देखा कि जो आपका पास डायग्राम था वो डायग्राम ये था, ये आपके दो पॉइंट्स गिवन हैं ए और बी, यहाँ से ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया और ये ऐसे आ गया सी पॉइंट पे, ठीक है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल गिवन है, मीन्स इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो एल है पूरा, और ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। और ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है। फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट पे जो होती है बी वी है यहाँ पे, उसको हम लिखते हैं अंडर रूट जी आर, और हेयर द रेडियस इज एल, सो द वेलोसिटी इज जी एल। नाउ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, फॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, तो 2h यहाँ पर हाइट कितनी है, L ये और ये लिए मतलब डायमीटर के इक्वल हाइट है, सो दिस इज 2L अपॉन जी, दैट इज 4L, तो T इक्वल्स टू अंडर रूट 4L अपॉन जी, ये वैल्यू हमारे पास में T की हो गई। सिंपल है, रेंज कैसे निकालेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इज वी इनटू टाइम एस टी, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। वी की वैल्यू हमारे पास में अंडर रूट जी एल और टी की वैल्यू है 4L अपॉन जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। रूट दैट इज जी एल इंटू 4L अपॉन जी, ये जी तो कैंसिल हो गई, ये 4L स्क्वायर हो गया अंडर रूट 4L स्क्वायर, तो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 2L हो गई, आर इक्वल्स टू 2L। तो देखिए कोई ऑप्शन है, वंस अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फोर ऑप्शंस। नाउ यू कैन सी A, B, C and D. So the option B should be correct. Now returns back to the board. So answer is 2L, that is option B. This is your fourth question. Once again see on the screen for your fifth question. Your fifth question is, a cyclist goes round a circular path of circumference 34.3 meter, circumference given है आपको 34.3 meter in under root 22 second. The angle made by him with the vertical will be A 45 degree, B 40 degree, C 42 डिग्री एंड डी 48 डिग्री, तो इनमें से एक एंगल होगा, तो पहले आप चेक करने के लिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन रिटर्न बैक टू द बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5, सर्कमफेरेंस का मीन्स 2 पाई आर, ये आपको गिवन है 34.3 मीटर, और जो टाइम गिवन है वो गिवन है अंडर रूट 22 सेकेंड, और जो आपको एंगल कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला होता है ये tan थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी, यू नो। सो हमें b चाहिए और r जी चाहिए, r तो यहाँ से मिल जाएगा, r का मीन्स आपका हुआ 34.3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये वैल्यू r की होगी, और v जो होता है हमारा सर्कुलर पाथ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी टाइम यहाँ गिवन हो, टाइम यहाँ t गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, देन tan थीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर, दैट इज 2 पाई r अपॉन t स्क्वायर डिवाइडेड बाई r जी। On solving, this is 4 pi square r square
अपॉन टी स्क्वायर जी, टी स्क्वायर आर जी, आर जी, 1 r is cancel here. This is 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर जी, वैल्यू पुट कर दीजिए 4 इंटू पाई स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। आर की वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे तो वो आपको मिलेगी दिस 34.3 अपॉन 2 पाई, और पाई स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी कितना गिवन है √22, स्क्वायर करेंगे तो 22, और जी 9.8 आपके गिवन है, ठीक है। अब यह सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये 1 पाई हमारे पास से कैंसिल हो गया, और ये 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा 34.3 इंटू पाई, पाई मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 9.8, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू दिस, तो इट इज 6.28 इंटू 34.3 divided by 22 into 9.8. You can solve it. On solving, we have this value 0.999999. So it can be written as approximately 1. So we have tan theta equals to 1. और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? सिंपली tan 45 की होती है, tan 45. So here the theta is 45 degree. So you can see in your options which option is correct. तो आपका आंसर आया है 45 डिग्री, जो कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑप्शन ए है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर 5th क्वेश्चन। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन once again see on your screen. So now your next question is, a car moves on a circular road. Describe equal angles about the center in equal interval of time. Which of the following statement about the velocity of the car is true? There are 4 options in the 6th question. You can see the options are A, B, C and D, and it's your question number 6. And options are, A option is magnitude of velocity is not constant. Both magnitude and direction of the velocity change. Velocity is directed toward the center of the circle. Magnitude of the velocity is constant. What direction change? ठीक है, सर्कुलर पाथ में डिवाइड कर रहा है, इक्वल। तो नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। क्वेश्चन 6 के अकॉर्डिंग ये सर्कुलर पाथ है, और ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, अगर ये पॉइंट P से Q है, और फिर से हम लेते हैं एक नया पॉइंट लेते हैं R से Q, सॉरी R से T, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो कह रहे हैं कि ये टाइम अगर T है तो ये इक्वल एंगल इक्वल टाइम इंटरवल में मूव करता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2 पाई अपॉन T, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एंगल डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r ओमेगा। r तो ऑलरेडी सर्कुलर पाथ की फिक्स होती है, तो b इक्वल्स टू r ओमेगा। जब r ऑलरेडी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो v खुद ब खुद कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन v का डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगा। एक ये यहाँ पे ये होगा, आपको पता है टेंजेंटियल होता है, तो डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगा, तो मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, बट इट्स direction should be changed continue as the particle or describe the circular motion. So which one is the correct option? Once again see on your screen for the questions option. So now you can see A, B, C, D. There are 4 options, and in the 4 options your correct option should be option D. Magnitude of the velocity is constant while the direction changes. Now return back to the board. So it is question 6 and its answer should be option D is the correct option. So you can note down this. Now for our next question, that is the question 7, once again see on your screen. Now 7th question, the angle turned by the body
अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन डिपेंड्स ऑन द टाइम। क्वेश्चन 7 में आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, डिपेंड्स ऑन द टाइम एज जो आपको थीटा गिवन है, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1t प्लस थीटा 2t स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। देन द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एफ 4 ऑप्शन इन द क्वेश्चन, ए थीटा 1, बी थीटा 2, सी 2 थीटा 1 एंड डी 2 थीटा 2। ओके, so for solving the question now return back to the board. Okay, this is your question 7. आपको एंगल दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन वहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा का मीन्स क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, एंगल डिस्क्राइब पर यूनिट टाइम। ओके, तो इट मीन्स ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे प्लेस करें इसको डी बाई डी टी और ओमेगा की जगह पे डी थीटा बाई डी टी, तो दिस इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ओके, तो एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, थीटा को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले हम ओमेगा फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ओमेगा। ओके, तो ओमेगा क्या होगी हमारी डी थीटा बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले टर्म में टाइम तो है ही नहीं, मीन्स ये टर्म होगा 0। दूसरे टर्म में टाइम है तो डी टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, थीटा 1 बचेगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थीटा 2 तो ऑलरेडी है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t ये हमें मिल जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2t, ये वैल्यू हुई। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है हमें, क्योंकि ओमेगा भी चाहिए हमें, तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए डी बाई डी टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2t। ओके, वंस अगेन जब आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में टी तो है ही नहीं, तो इट विल बी 0। सेकेंड स्टेप में 2 थीटा 2t है, तो डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा 2 बचेगा, तो अल्फा इज 2 थीटा 2। तो दिस इज योर आंसर। नाउ वंस अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फॉर द ऑप्शंस, योर ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। सो अकॉर्डिंग टू योर आंसर, ऑप्शन डी इज 2 थीटा 2। Okay, now returns back to the board. So the correct option is answer D. Okay, 2 theta 2 आया है जो आपका क्वेश्चन में 4th ऑप्शन है, ठीक है। So that's all for this question. Now we have to move towards our next question. So next question is question number 8. So see on the screen. So now you can see on your screen what is the question 8. Question 8, a particle is moving with a uniform speed v in a circular path, okay, of radius r with the center O. When the particle moves from a point P to Q on the circle such that angle POQ is theta, then the magnitude of the change in velocity is, there are 4 options in the question. There are 4 options in the question, A, B, C and D. A is 2b sin 2 theta, B is 0, C is 2b sin theta by 2 and D 2b cos theta by 2 and D 2b cos theta by 2 is the option. So this is your 8th question, which option should be correct here. Okay, तो 8th क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये आपको चाहिए है, अब वंस अगेन आई रीड, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड b इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with the center O. When the particle moves from a point P to Q on the circle such that angle POQ is theta, then the magnitude of change in velocity is, इनमें से क्या? So for solving the question, returns back to the board. In the 8th question, angle is POQ is given theta. Means अगर आप ये सर्कुलर पाथ एज्यूम करते हैं, तो लेट मी चेंज द मार्कर। अगर आप ऐसा कोई सर्कुलर पाथ यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक एंगल गिवन है आपको, ये सेंटर है, ये P है, ये Q है, और ये एंगल आपको थीटा गिवन है। आपको वेलोसिटी चेंज चाहिए, मीन्स यहाँ पर अगर v1 है और यहाँ पर अगर v2 है, यूनिफॉर्म स्पीड में तो v1 v2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होंगे, बट डायरेक्शन अलग अलग हो, तो वेलोसिटी चेंज आपको निकालना है, मीन्स v1 माइनस v2।
दैट इज डेल्टा वी, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या करेंगे आप, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस 2v1 v2 cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ बिकॉज मॉड b1 इज इक्वल्स टू v2, दोनों इक्वल है, फिर v को सपोज कर लेते हैं, तो दिस इज डेल्टा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इंटू v स्क्वायर cos थीटा. नाउ दिस इज अंडर रूट 2v square minus 2v square cos theta. On solving, this is 2v square is common, 1 minus cos theta is here. Okay, 1 minus cos theta. अब एक फॉर्मूला आपने रीड किया होगा cos 2 थीटा का, दिस इज 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. तो यहाँ थीटा को 2 थीटा के इक्वल सपोज कर लेते हैं, मतलब थीटा हाफ के टर्म में आ जाएगा. तो वी कैन राइट दिस अंडर रूट 2v स्क्वायर 1 माइनस, अब इस cos थीटा को हम रिप्लेस करते हैं, कैसे, इसको ऐसा रिप्लेस करिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 है, ये ब्रैकेट है, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास में टर्म कितना बचेगा, 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यू कैन सी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 मिल गया, v स्क्वायर का v मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 मिल गया. तो वंस अगेन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन फॉर द ऑप्शंस. ऑप्शंस आर A 2b साइन 2 थीटा, B 0, C 2b साइन थीटा बाई 2 एंड D 2b cos थीटा बाई 2. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, C आ रहा है. नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड, your option C is correct, so it is option C. Okay, you can note down by pausing the screen. Now we have to move towards our next question, that is the question number 9, and for the question number 9, see on your screen. So your question number 9 is the maximum and minimum tension in the string whirling in the circle of radius 2.5 मीटर. देख रहे हैं आप, सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 2.5 मीटर with a constant velocity are in the ratio, with the constant velocity are in the ratio 5:3. ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, टेंशंस का रेशियो आपको गिवन है, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो 5:3 है. फाइंड आउट द वेलोसिटी, ये आपका, और इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, A, B, C एंड D. A इज अंडर रूट 98 मीटर पर सेकेंड, B इज 7 मीटर पर सेकेंड, C इज अंडर रूट 490 मीटर पर सेकेंड एंड D इज अंडर रूट 4.9. So for solving it, return back to the board. Okay, so these terms are given. The radius of circle is 2.5, the tension मिनिमम मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, ये रेशियो आपको गिवन है. तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है. ये एक सर्कल है और ये, तो आप देख रहे हैं ये इसका अपर मोस्ट पॉइंट है, ये इसका लेयर सपोज कर लेते हैं, ये A है, ये V है और ये सेंटर है. देखिए जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा mg, और टेंशन हमेशा टुवर्ड द सस्पेंशन पॉइंट होता है, मीन्स टेंशन भी इधर होगा. लेकिन जब पार्टिकल इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे है तो टेंशन तो इधर होगा बट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, तो यहाँ होगा. तो देखिए टेंशन कहाँ है, यहाँ पर. और ये जो रिवल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, ये किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल. तो हमारे पास में फॉर पॉइंट अगर V की बात करें, एट V, तो टेंशन जो होगा TV जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो TB प्लस mg इज इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन r, दैट इज TV इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन r माइनस mg. एक टर्म ये होगा एट A. अगर हम A पॉइंट की बात करें तो यहाँ टेंशन इधर है, TA माइनस mg टुवर्ड द सेंटर ये फोर्स लग रहा है, और ये किसके इक्वल है, mb स्क्वायर अपॉन r, दैट इज TA इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. तो यू कैन सी विच वन इज मैक्सिमम, A पे मैक्सिमम होगा कि B पे मिनिमम होगा.
देख सकते हैं ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तो ये मिनिमम होगा, मीन्स अपर पॉइंट पे ये मिनिमम होगा और लोअर पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, जिनका रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इज दिस एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी एंड मिनिमम इज दिस एम बी स्क्वायर आर एम जी, और इनका रेशियो क्या है 5:3, इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा रब करना होगा। देखते हैं, ये 3 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3 एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस 3 एम जी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 एम जी। इनको अगर हम ऐड करें, इस 5 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 8 एम जी, और इसको उधर ले जाए तो ये बचेगा 2 एम बी स्क्वायर 5 - 3 अपॉन आर। देखते हैं 2 4 जा 8 तो यही हो गया, 4 एम जी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, 1 एम इज अगेन कैंसिल है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जी आर, और वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 जी आर। कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट, और ये वैल्यू आपको 2.5 गिवन है, ग्रेविटी आपको पता होती है कितनी, तो अंडर रूट 4 जी इज 9.8, आर इज 2.5। अब देख सकते हैं 2.5 25 इंटू 4 100 होगा, एक के बाद पॉइंट है तो 10 हो जाएगा ये, और 10 से 9.8 का, तो इट इज अंडर रूट 98। कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए? अभी आपने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ। ओके, so this is the solution of your 9th question. Now we are moving towards our next question, that is the last question of the day. So for the last question you can see on your screen, so now you can see on your screen, this is your last question, that is the question number 10. So 10th question is 10th question. It looks like a long question. A particle of mass m is moving along the side of a square of side A with a uniform speed b in the xy plane as shown in the figure. फिगर को ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर बना हुआ है xy प्लेन में, और स्क्वायर के एक पॉइंट ए की डिस्टेंस मीन्स r आपको गिवन हुए है, और r का एंगल x एक्सिस के साथ 45 गिवन है। Which of the following statement is false for the angular momentum L about the origin? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। So returns back to the board for the question. So this is your question number 10, और जो डायग्राम है उसको ज़रा ध्यान से यहाँ देखिए, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से एक डिस्टेंस आपको r गिवन है जो 45 डिग्री के एंगल पे है, और यहाँ से एक स्क्वायर है। ठीक है, दिस वन ए वी सी डी, यहाँ डायरेक्शन भी गिवन है, इस तरीके से ये डायरेक्शन आपको गिवन है। एंगुलर मोमेंटम चाहिए, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? तो साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज गिवन ए। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यू कैन सी हियर, अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस इसकी एक्स एक्सिस पे है, ये डिस्टेंस, और ये इसकी हाइट वाई है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट ए के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें, क्या देखिए, एक्स जो डिस्टेंस होगी, एक्स के अलॉन्ग इस आर का कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है 45। तो इसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए आर, और 45 की वैल्यू 1/√2, दैट इज आर अपॉन √2। ये तो अब बाई की अगर हम बात करें तो बाई कंपोनेंट आर साइन 45, और साइन 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो भी आर अपॉन √2। ये तो पॉइंट ए की बात हुई, आर अपॉन √2 ये, आर अपॉन √2 ये। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, बी पॉइंट यहाँ से देखिए, तो आर ये इतनी डिस्टेंस जो थी आर अपॉन √2 तो आपको पहले ही मिल चुकी है यहाँ तक की, इसमें ए और ऐड हो जाएगा बी पॉइंट के लिए, तो क्या होगा आर अपॉन √2 प्लस ए।
और बाई की अगर हम बात करें तो हाइट तो उतनी है, r अपॉन रूट टू इज सेम फॉर द सी कोऑर्डिनेट की अगर बात करें ये इसमें बाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, x भी बढ़ा हुआ है और बाई भी, मतलब x की डिस्टेंस ये है और बाई की ये है। तो x की बात करें तो ये है r रूट टू प्लस ए और बाई कोऑर्डिनेट भी r बाई रूट टू प्लस ए। और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, d फिर वापस आ गए तो इसका a कोऑर्डिनेट तो एविटिव उतना ही रहेगा x पे डिस्टेंस, y है तो a कोऑर्डिनेट इज r अपॉन रूट टू एंड y कोऑर्डिनेट इज r अपॉन रूट टू प्लस a। दीज आर द 4 कोऑर्डिनेट्स। अब इनमें स्टेटमेंट वाइज देखते हैं हम कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं। तो वंस अगेन रिटर्न्स बैक टू योर स्क्रीन टू सी द ऑप्शंस। तो योर ऑप्शंस आर एल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है और इवन के अबाउट पहला फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इनमें से कौन सा फॉल्स है आपको ये बताना है। एम बी अंडर रूट आर अपॉन टू माइनस ए व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी, एल इक्वल्स टू एम बी आर अपॉन रूट टू प्लस ए k cap when the particle is moving from B to C, and C option is L equals to mb upon root 2 r unit vector k when the particle is from D to A, and L is mb minus mb upon root 2 r unit vector k when the particle is moving from A to B। तो पहले ऑप्शन में C to D है। Now return back to the board। फ्रॉम C टू D की अगर हम बात करते हैं, C से D और रोटेशन इसका ऐसे हो रहा है, तो थर्ड मतलब Z के अलावा पूरा। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस में जब हम नोटिस करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, वहाँ लिखा हुआ है एम बी आर और आर क्रॉस पी। एम मास जो है वो है, वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है, बात सिर्फ आर की है। तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं C टू D मतलब x के अलोंग चल रहे हैं, तो ये रोटेशन किसके अबाउट होगा, बाई। तो हमें कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। और इसका y कोऑर्डिनेट की जो हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं वैल्यू किस डायरेक्शन में D पॉइंट पे आया है। तो C पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे वो कितने के होंगे, r अपॉन रूट टू प्लस ए। ये मल्टीप्लीकेशन है किसका, बाई के डिस्टेंस का, प्लस ए आ रहा है। और किसके अबाउट होगा, इस प्लेन में ये स्क्वायर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा जेड। तो मीन्स आपको जेड के डायरेक्शन में यूनिट कैप वेक्टर के लेना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो जो आपके ऑप्शन में गिवन है वो यहाँ माइनस है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये नहीं हो सकता। सर नेक्स्ट की बात करें, सेकेंड ऑप्शन में आपने देखा, सेकेंड ऑप्शन में आपका पॉइंट थे बी टू सी, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें V टू C, तो फ्रॉम V टू C की बात करें, फिर से अगर हम L की बात करें L, तो MB तो वही रहेगा, R की बात बदलनी है। V टू C जब मूव करें तो Y के अलॉन्ग मूव कर रहा है, X वाला कोऑर्डिनेट यूटिलाइज करेंगे। तो B का X कोऑर्डिनेट कौन सा है, B पॉइंट का R रूट टू अपॉन प्लस ए, R अपॉन रूट टू प्लस ए, और डायरेक्शन तो वही होगा जेड के अलॉन्ग। तो ये तो ठीक लग रहा है, ऑप्शन में भी ये लिखा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, तो ये करेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन को चेक करने के लिए हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या है। वंस अगेन सी ऑन द स्क्रीन, एम बी अपॉन रूट टू आर के कैप है व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम डी टू ए, डी से ए की तरफ जब मूव कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, तो वापस आते हैं बोर्ड पे चेक करने के लिए। नो पॉइंट है आपका कौन सा है, सी पॉइंट में डी टू ए, यहाँ देखते हैं एल इक्वल्स टू एम बी, डी पॉइंट डी टू ए आएगा तो बाई एक्सेस के अलाउंग मूव कर रहा है, लेकिन निगेटिव बाई एक्सेस के अलाउंग। ओके, निगेटिव बाई एक्सेस के अलाउंग। तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट डी पॉइंट पे क्या है, आर अपॉन रूट टू, और ये बाई निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो निगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सी है, और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी बनाई है, बट यहाँ तो ये निगेटिव है, तो मीन्स ये रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है।
अब हम फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में पॉइंट है ए टू वी, ए टू वी, फ्रॉम ए टू वी। जब हम ए टू वी मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब बाई के वाला कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो L इक्वल्स टू एम डी, बाई कोऑर्डिनेट देखते हैं इसका क्या है। बाई कोऑर्डिनेट आर अपॉन रूट टू है, जस्ट आर अपॉन रूट टू, और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, तो क्या हम देख सकते हैं कि एक्स के निगेटिव है, सॉरी ए टू वी मूव किया है, ए टू बी मूव किया है, और लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन, और इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए ए टू बी ये भी क्या है। अब चेक कर लेते हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन आपका देखते हैं क्या क्या गिवन है। वंस अगेन सी ऑन द स्क्रीन, क्लियर है। नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। ऑप्शन ए एंड सी आर इनकरेक्ट, तो आंसर्स आर ए and C are the correct options. So this was our last question. You can solve it by pausing the screen. Now we will meet in our next class. Till then, enjoy and goodbye.